Assalamu alaikum. My name is Amir and my teammate name is Ryan Jacob. The topic for our presentation is Artificial Programming Interface, also known as API. And in this presentation, we are going to tell you guys about what API is, its brief history, and a little bit about its types and kinds and its uses nowadays. So what is an API? An Application Programming Interface. API is a way for two or more computer programs to communicate with each other. It is a type of software interface offering a service to the two other pieces of software. A document or standard that describes how to build or use such a connection or interface is called API specification. The term API may refer either to the specification or to the implementation. API वो mechanisms होते हैं जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के अंदर आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे वेदर ऐप एक होता है, उसके अंदर वेदर के सारा डाटा जो है मौजूद होता है, लेकिन उस डाटे को शो कराने के लिए वेदर ऐप आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है, जिसके ज़रिए से आपको वेदर का डाटा शो होता है। सो ये एक छोटी सी डायग्राम है जिसके ज़रिए हम API को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एक ऐप है, वो क्लाइंट यूज़ करता है जिसके ज़रिए सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है, और फिर सर्वर जो है वही रिस्पॉन्स क्लाइंट को वापस भेजता है, जिसका डाटा जो डिस्प्ले होना होता है वो रिस्पॉन्स। Now let's start with API explanation. In contrast to a user interface which connects a computer to a person, an application programming interface connects computers or pieces of software with each other. It is not intended to be directly used by a person other than a computer programmer who is incorporating it into a software. An API is often made up of different parts which act as tools or services that are available to the programmer. A program or a programmer that uses one of these parts is said to call that portion of API. API is not like user interface, meaning that with API, what we do is that instead of connecting software to a person, we connect different softwares together. जैसे गूगल ऐप खोलते हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए और फिर उसके ज़रिए आप फिर ब्राउजिंग करते हैं वेरियस ऐप पे या वेबसाइट्स पे. So what is the purpose of API? One purpose of API is to hide the details of how a system works, exposing only those parts a programmer will find useful and keeping them consistent even if the internal details later change. An API may be custom built for a particular pair of systems, or it may be shared standard allowing interoperability among many systems. A software intermediary that allows two applications to talk to each other. Each time you see an app like Facebook send an instant message or check the weather on your phone, you're using an API. तो API बेसिकली जो है ना, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं या जो एप्स होते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है. So a little bit about the history of API is that API originated in the 1940s, though the term did not emerge until the 1960s and 70s. Recent developments in utilizing APIs have led to rise in popularity of microservices, which are ultimately loosely coupled services accessed through the public APIs. Maurice Weiss, David Wheeler, and Stanley Gill are considered by many to be the godfather of programming and software, and they are the ones who designed the APIs. So API has many types, but we are going to explain you guys about three of those: local, web, and program. So starting with local API. Local API is the original form of API, which is the OS APIs that provide services to the application programs. सो फॉर एग्जांपल जैसे वर्डप्रेस पे आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कोई आप ऐप डिज़ाइन करते हैं, उसकी जो डेटाबेस वगैरह, उसकी जो डेटाबेस और डाटा होता है बैक एंड का, वो सारा सर्वर के अंदर स्टोर होता है, और फिर उसको एक्सेस करने के लिए आप उसी के अंदर रिक्वेस्ट भेजते हैं, और वो फिर सर्वर जो आपको वापस रिस्पॉन्स भेजता है, जिसके ज़रिए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. Program API based on RPC technology that makes a remote program execution from another server. Remote procedure call RPC is a methodology used for consulting distributed client-server based applications. जैसे क्लाइंट सर्वर को RPC रिक्वेस्ट भेजता है और फिर सर्वर उसकी रिक्वेस्ट के मुताबिक प्रॉपर रिस्पॉन्स भेजता है. Web API, also known as web services, is an API where apps and devices communicate with each other via World Wide Web. So जैसे YouTube होती है, YouTube को हम एक्सेस करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसको यूज़ करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हैं, और इंटरनेट के ऊपर ही फिर हमें YouTube का जो सारा डाटा होता है, जो वीडियोस वगैरह जिस पर अपलोड होती है, वो सारी शो होती हैं. तो वेब API की एग्जांपल ये होगी. सो ये चंद फ्रेमवर्क्स हैं जो आजकल के ज़माने में यूज़ होते हैं. फाइबर, फेस्टिफाई, फोनिक्स प्लस एलेक्सर और डॉट नेट कोर. ये आगे इनके लोगोस दिए गए हैं.
API economy. The API economy refers to the set of business models and practices designed around the use of APIs in today's digital economy. It involves the exposure of an organization's digital services and assets through application programming interfaces, APIs in controlled way. APIs ensure that the data extracted from one software application is formatted and passed to the next application securely and accurately, even if the associated apps feature sets have been updated. Essentially, they allow two applications to seamlessly communicate and share data with each other. जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर में या किसी एप्लीकेशन में अपनी आप इंफॉर्मेशन इंटर करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें आपका क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन या इस तरह की जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है उस तरह की चीज़ें आप इंटर करते हैं जो कि आप चाहते हैं कि सेफ़ रहें। तो एपीआई इकॉनमी के मुताबिक आप वो डाटा जो है आपका वो सेफ़ रहता है, जैसे ताकि अगर एपीआई अगर वो किसी और सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करें तो सिर्फ उस टाइम पे कम्युनिकेट करें, वो डाटा आगे शेयर ना हो। वो इस चीज़ की श्योरिटी जो है वो आपको प्रोवाइड करता है ताकि आपका डाटा सिक्योर रहे और आपको यूज़र इंटरफेस भी जो है वो अच्छा मिले, जो आपका रिस्पॉन्स है वो आपको बेहतरीन मिले और आपकी जो प्राइवेसी है वो भी हार्म ना हो। API का आइडिया काफ़ी पुराना है, लेकिन हम आपको 1990 से जो API के फ्रेमवर्क्स यूज़ हो रही हैं उनके नाम बताते हैं। 1991 में कोरबा, 1993 में RDA, 1998 में XML RPC, 1999 में SOAP, 2000 के अंदर REST, 2005 के अंदर जेसन RPC, 2007 के अंदर ODATA और ग्राफिकल 2015 में और 2016 में GRPC। तो ये आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के टेबल है एपीआईज के, जो कि हमने खुद नहीं बनाया, इंटरनेट से लिया, लेकिन हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए हम चार एपीआईज के बारे में आपको बताएंगे, चार मोस्ट फेमस एपीआईज जो यूज़ होती है उनके बारे में बताएंगे आपको कि वो ऑर्गेनाइज जो हुई थी वो किस टर्म्स पे, उनका फॉर्मेट, उनका लीनिंग कर्व, कम्युनिटी और उनके यूज़ केसेस। सो आरपीसी जो ऑर्गेनाइज हुई थी वो लोकल प्रोसीजर कॉलिंग की बेस पे की टर्म्स पे ऑर्गेनाइज हुई थी। सोप ऑन दी अदर हैंड वो इन्वेलप्ड मैसेज स्ट्रक्चर के बेस पर ऑर्गेनाइज हुई थी। और रेस्ट कंप्लायंस विद 6 आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेंट एंड ग्राफक्यूएल स्कीमा और टाइप सिस्टम के टर्म्स पे ऑर्गेनाइज हुई थी। इनका फॉर्मेट, आरपीसी का फॉर्मेट है वो जेसॉन, एक्सएमएल, प्रोटोबफ, थ्रिफ्ट और फ्लैट बफर्स। और सोप का जो फॉर्मेट है वो एक्सएमएल ओनली, और ये सिर्फ एक्सएमएल पे डिज़ाइन होता है, इसके अलावा सब कोई और फॉर्मेट नहीं है। रेस्ट का एक्सएमएल, जेसॉन, एचटीएमएल और प्लेन टेक्स्ट में भी हो जाती है, और ग्राफक्यूएल का जेसॉन। इनका अब लीनिंग कर्व ये है कि आरपीसी इजी है, सोप काफ़ी डिफ़िकल्ट है, रेस्ट इजी है और ग्राफक्यूएल मीडियम है, मतलब ना ज़्यादा इजी है और ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मेहनत करें तो हो जाएगी। कम्युनिटी इनकी आरपीसी की बहुत लार्ज कम्युनिटी है, ज़्यादा लोग आरपीसी की तरफ ही आते हैं क्योंकि ये काफ़ी इजी है और इजी टू लर्न है। सोप की काफ़ी स्मॉल कम्युनिटी है क्योंकि ये मुश्किल है और लोग ज़्यादा आसानी से जाते हैं। और रेस्ट की जो कम्युनिटी है वो काफ़ी लार्ज है क्योंकि ये भी जो है इतनी मुश्किल नहीं है, इजी है। और जो ग्राफ क्यूएल है वो उसकी कम्युनिटी ग्रोइंग है क्योंकि इतनी मुश्किल नहीं है, तो इसकी कम्युनिटी जो ऐसे ऐसे करके बढ़ रही है, अभी इतनी नहीं है लेकिन बढ़ रही है। अब यूज़ केसेस इनके ये होंगे। Following are the use cases of API. RPC का use case command and action oriented APIs, internal high performance communication in massive microservices systems. SOAP का payment gateways, identity management, CRM solutions, financial and telecommunication services, legacy system support. REST का public API है सिंपल सोर्स ड्रिवन एप्स, और GraphQL का मोबाइल APIs, complex systems और माइक्रो सर्विसेज। So REST API is the most commonly used API nowadays. Most people prefer REST nowadays because it is easy and it gets the work done in lesser amount of time. So REST is a set of architectural constraints, not a protocol or standard. API developers can implement REST in variety of ways. When a client request is made via RESTful API, it transfers a representation of the state of the resource of the requester or endpoint. So REST API का आर्किटेक्चर इस तरह का है कि जैसे फर्ज करें आपकी कोई डिवाइस है, एंड्रॉयड ऐप है, या आप आईफोन पे यूज़ कर रहे हैं, कोई एंड्रॉयड डिवाइस पे, या आप ब्राउज़र या वेब पे यूज़ कर रहे हैं, तो आप किसी रेस्ट के फॉर्मेट में, जैसे यहाँ पे जेसन और एक्सएमएल मेंशन्ड है, उसके ज़रिए आप आगे एक मेथड जो है वो डिक्लेयर कराते हैं या एक मेथड की रिक्वेस्ट आप आगे सेंड करते हैं, और वो फिर आपके सर्वर ऐप के अंदर लोड होता है, और फिर
उसके मुताबिक आपको रिस्पॉन्स आता है कि रिस्पॉन्स अगर आपका वैलिड हुआ तो वो आपको प्रॉपर एक रिस्पॉन्स दे देगा, नहीं तो वो एक एरर शो करा देगा। So what is an API designed for? It is designed for desktop apps, mobile apps and third-party web apps. So basically it is designed for anything that offers interaction between our servers with a backend. API के कॉमन यूजेस जो हम तकरीबन रोज़ यूज़ करते हैं वो ये होंगे, जैसे आप गूगल के ऊपर वेदर का सर्च करते हैं तो वेदर का डाटा आपको डिस्प्ले होता है, जो गूगल के ऊपर जो फर्स्ट जो आपको सजेशन होती है वो वेदर आपको शो हो जाता है, वो एक API होगी। जैसे आप फर्ज करें आप लॉगिन करते हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे या जीमेल पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम, इस तरह किसी भी ऐप पे आप लॉगिन करते हैं, आपको लॉगिन के लिए अपना ईमेल पासवर्ड डालना होता है। वो लॉगिन के लिए जो डिटेल्स होती है उनको हम API के इंस्टॉल करवाते हैं। जैसे अगर आप पे विद का मतलब जैसे आप कोई शॉपिंग ऐप यूज़ कर रहे होते हैं या कि शॉपिंग सॉफ्टवेयर या शॉपिंग साइट पर होते हैं, आप जो डिटेल्स डालते हैं कि आप पे विद पेपैल या पे विद कैश ऑन डिलीवरी इस तरह की चीज़ें होती हैं, पे विद की API ये होगी। ट्विटर बॉट्स मतलब कि जो ट्विटर के ऊपर जो आपको प्रोडक्ट के जो कमेंट्स वगैरह आते हैं इस तरह की चीज़ें, ट्विटर बॉट्स वो हो गया। ट्रैवल बुकिंग का ये, जैसे आप फर्स्ट करें आपने किसी दूसरे शहर जाना है, जो आप जो ट्रैवल बुकिंग मतलब कि जो आप टिकट जो बुक करेंगे वो एक कॉमन यूज़ होती है API की। Okay, so here's how API powers our life on a daily basis. So here are some ways API power life from behind the scenes. So financial institutions like banks use private APIs to track and manage checking accounts, credit cards, and more. बैंक्स प्राइवेट API यूज़ करते हैं ताकि वो आपका जो अकाउंट डिटेल्स हैं उनको सेव कर सकें। And retail giants use APIs to communicate with courier networks, ensuring packages are picked up as soon as possible and tracking them as they are moved. रिटेल में कोई प्रोडक्ट अगर ऑर्डर की जाए तो उस प्रोडक्ट की जो डिटेल्स होती हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए यूज़ होते हैं। Web application use APIs to connect user-facing front ends with all important back-end functionality and data. फ्रंट एंड को बैक एंड से कंटेंट कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है ये। Streaming services like Spotify and Netflix use APIs to distribute content. नेटफ्लिक्स पे कोई फिल्म या सीरीज़ की कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए यूज़ होता है। Automotive companies like Tesla send software updates via APIs. Others use APIs to unlock cars for third parties. जैसे टेस्ला की API आपको गाड़ी में ऐप्स का एक्सेस कर देती है। APIs or application program interfaces are vital tools for business in all industries. The importance of APIs from a technical standpoint, they allow the capabilities of one computer program to be used by another. They are a means by which two different programs are able to communicate.